حدیث سے جو ذکر ثابت ہے وہ نماز ثابت ہے. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی چھوٹی بڑی ضرورتیں نماز کے راستے سے حل کراؤ. اور اللہ کے آپ یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حال آیا تو آپ نے کیا کیا آپ بتاؤ. 3 دن کا فاقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ نے کیا کیا؟ نماز پڑھی صلاۃ الحاجہ. پھر اچھا تو نفل نماز پڑھ لیا کرو پھر 2 رکعت. چلو کہاں جی گھر چلی ہو کہاں چلی ہو؟ نہیں کام میں ہے کچھ آپ صاحب؟ نہیں کام میں نہیں ہے. پیدل آؤ. دیکھیے نماز سے کام بنتے ہیں. اللہ نے نماز تمام کائنات کے نشوں کے مقابلے میں دی ہے. جس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے اس عمل کو چھوڑ کر آپ کسی مولانا کے بتائے ہوئے تجربے کی طرف جا رہے ہو. اس کو دھیان سے پڑھ لے اور نماز میں دھیان لانے کی آپ نے کتنے دن محنت کی بتائیے؟ 6 سال محنت کی آپ نے نماز میں دھیان لانے کے لیے. کئی گھنٹے آپ نے نماز کے میں دھیان لانے کے لیے مشق کی ہے. تو یہی ہو جائے گا کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا, عقیدت مضبوط ہو جائے گی. اگر آپ کا اس سے کام بن گیا تو اللہ کے رسول کی عقیدت کم ہو جائے گی اور مولانا صاحب کی عقیدت زیادہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول کا عقیدہ کمزور ہے اور مولانا کی عقیدت زیادہ ہے. آج امت اس میں تو پھنسی ہے. ہاں اسی میں پھنسی ہے. ابھی کسی کو اللہ آدمی اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے مگر اس پر آدمی سنتا رہتا نہیں بولتا. ابھی آپ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار سے روزی ملتی ہے, نماز پر روزی ملے گی, سورہ صدقہ بلاؤں کو دور کرے گا اور سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. تو آدمی کہے گا بھئی اتنا ہمارا ایمان کہاں دبک بغیر کہاں ٹھیک ہو جائے گا, خالی صدقے سے کہاں کام چل جائے گا, خالی استغفار سے کہاں کام چلے گا, اتنا ہمارا ایمان کہاں. اللہ کی بات کا اس نے رد کر دیا. اب ایک آدمی تبلیغ میں لگا ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, اس کے جو مسلک کے بڑے ہیں ان کی بات بتاوے اور آپ رد کر دو کہ نہیں ان کی ساری باتیں تھوڑے مانی جائیں گی. وہ کون ہے؟ ابھی کوئی آدمی جماعت میں لگا ہے کہے مولانا صاحب کی ساری باتیں نہیں مانی جائیں گے تو کہے گا اچھا تو مولانا صاحب کی بات نہیں مانو گے؟ تو مولانا صاحب بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں, اللہ کا رسول بڑا ہے. تو عقیدت مضبوط ہے, عقیدہ کمزور ہے. اصل اللہ نے نماز دی, جس کی نماز نہیں قبول ہوگی اس کی کوئی نیکی نہیں قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے چاہے اتنا پڑھے آدمی, اور نماز اس کی قبول ہوگی جس کی نماز میں اللہ کا دھیان ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کے 2 درجے, تیسرا درجہ ہی نہیں. یا تو نمازی کو دعا دیتے ہوئے آسمان پر جائے گی یا بد دعا دے گی بس. اب اگر نماز میں آپ کے دھیان ہے تو دعا دے رہی, ورنہ بد دعا دے رہی. تو جب نماز ہی بد دعا دے رہی ہے تو وظیفے سے کہاں سے کام چل جائے گا؟ نماز اگر اللہ کے سفارش کر رہے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو اصل تو نماز ہے. جس کی نماز نہیں قبول اس کی کوئی نیکی نہیں قبول ہے. نماز میں دھیان لاؤ. کون سی نماز پر اللہ کام بناتا ہے یہ سوچو پہلے. آدمی نماز پڑھتا ہے, صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے, نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے کھانا کھانے کا حکم ہے, کھانا کھاتا آدمی کھانا پڑھتا نہیں ہے. کھانا پڑھنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور سائیکل آدمی چلاتا ہے, سائیکل پڑھتا نہیں ہے. ایسے نماز قائم کرنی پڑے گی آپ کو. قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. پڑھنے کا نہیں حکم دیا ہے اللہ نے, اگر مسلمان پڑھنے پر لگا ہوا ہے. قائم کرو تو اس لیے قائم ہوگی نماز جب تو مسئلے حل ہوں گے. قائم ہوں گی مطلب اس کا اہتمام ہوگا وہی نا. اہتمام الگ چیز ہوگی, اہتمام کہتے ہیں لگاتار کرنے کو. اور قائم کرنا پڑھیے کتاب میں لکھا ہوا فضائل اعمال میں. یہی تو کہتے ہیں لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. امت کو لوگ اس پہ لگا رہے ہیں اور علماء لگا رہے ہیں, کلمہ پڑھانے پر لگا رہے ہیں, نماز پڑھانے پر. نہ کلمہ پڑھنے کا حکم ہے نہ نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن حدیث میں. الجھ گئے سب لوگ یار. باقی صاحب کیا کریں گے, کس کی کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کلمے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اسلام میں داخل کر دے سکتے ہیں اس کے گواہی دو اس کلمے کی. گواہی پڑھنے میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا. پھر اگر پڑھنے سے ہو جاوے تو آپ اپنے یہاں جہاں رہتے وہاں چوراہے پہ بورڈ لگا دو, اور ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں بہت بڑا بڑا لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر گزرنے والا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ہر مذہب والا تو مسلمان ہو جائے گا پڑھ کر. وہ گواہی دینے سے مسلمان ہوتا, اور گواہی دینے سے اسلام میں داخل ہوتا. خالی مومن نہیں بنتا. مومن بننے کے لیے کلمہ اندر آنا چاہیے. جیسے کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے
कायम करने से मुराद क्या? पढ़िए, फज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, हाँ, वो पढ़िए, फिर हम नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, बताएंगे हम। आप ये समझिए, आप देखिए, मुसलमान, आपकी बात नहीं सबकी है, 20-20 साल से 10-10 साल से नमाज का अमल कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम उसको कि नमाज पढ़ने का हुक्म है कि कायम करने का हुक्म है, नमाज पर क्या करना है। इसलिए नमाज पढ़ने वाला एक दिन नमाज से मायूस हो जाता है कि इससे काम नहीं बनेगा, तब ये सबब में जाता है। ये इससे नमाज के अंदर है क्या फज़ाइल अमल में? फज़ाइल अमाल में आप पढ़िए उसको, कैसे होगी फिर हम बताएंगे आपको। जिस दिन आपकी नमाज कायम हो गई ना, उस दिन उस नमाज पर आपकी दुआ कबूल होगी, काम बनेंगे। अच्छा तो अभी साहब, अच्छा ये फिर अगर नमाज पढ़ के काम बन रहे तो उसका यकीन भी तो ये गलत होगा क्या होगा? गलत होगा कि सही होगा? असल यकीन तो यही, नमाज पढ़ कर जब काम बने। अगर नमाज पढ़ने से काम बने तो फिर ये यकीन क्या सही बना कि गलत बना? तभी तो सही यकीन बनेगा। अल्लाह के वादे किस पर हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे किस पर बताए हैं? नमाज पर बताए कि नहीं? तो नमाज पढ़ के जब आपके काम बने तभी तो काम यकीन बनेगा कि अल्लाह करते हैं, अमल पर करते हैं। अब आप एक दवा बना रहे हो, मिसाल के तौर पर सेक्स की दवा आपने बनाई, और जिसको दिया उसको दवा ने काम कर दिया, दूसरे को दिया उसको भी काम कर गई, तीसरे को दिया उसको भी काम कर गई, तो खाने वाले का भी यकीन बनेगा, आपका भी यकीन बनेगा। और आपने दिया और काम नहीं किया, फिर दूसरे को नहीं काम किया, तीसरे को दिया काम किया, तो आपका यकीन बना उससे दवा से? नहीं बना। फिर दूसरी दवा आपने दी, उसने पहली मतलब में काम कर दिया, तो किस दवा से आपका यकीन बनेगा बताओ? क्या बोले अभी साहब? एक दवा 3 मतलब खिलाई, उस दवा ने काम नहीं किया, तीनों आदमियों को, 3 लोगों को खिलाई, काम नहीं किया, और फिर दूसरी दवा आपने दी पहले आदमी को, पहली मतलब में दवा ने काम कर दिया, यकीन किससे बनेगा आपका? दूसरी दवा से। फिर ऐसे अगर नमाज से काम नहीं बनेगा तो आप सबब में जाओगे। पहली मतलब में आपका काम बन गया, तो बताओ माल से काम बनेगा या अल्लाह से काम यकीन बनेगा? माल से यकीन बनेगा, अल्लाह से बनेगा? अल्लाह से बनेगा ना। अल्लाह से कहाँ बनेगा? माल असबाब से बनेगा, क्योंकि माल असबाब से काम बनाया आपका। अच्छा, माल से काम बनेगा तो ना। हाँ। तो नमाज से जब काम बनेगा तभी यकीन बनेगा, अल्लाह करते हैं, अमल करते हैं। अभी नमाज से काम कहाँ बनना है मुसलमान का? क्योंकि नमाज पढ़ रहा है ना, नमाज कायम कहाँ कर रहा है? अच्छा, तो नमाज कायम करेगा काम बनेगा आपका। हाँ सही। अभी तक या तो किसी ने बताया नहीं होगा, किसी मुफ्ती ने बताया होगा, किसी आलिम ने नहीं बताया होगा, जबकि कुरान में, हदीस में सब जगह लिखा हुआ है। और अरबी में पढ़ लो, अरबी में यही है, नमाज कायम करो, और तर्जुमा किया है उसमें कि नमाज पढ़ो। अरबी में हदीस में लिखा है नमाज की हिफाजत करो, तर्जुमा किया है नमाज की पाबंदी करो, ये तर्जुमा है। अरबी में आप पूछ लो, उसमें लिखा है नमाज की हिफाजत करो। और ये किसी ने बताया नहीं होगा आपको आज तक, क्योंकि ईमान नहीं सीखा तो जान क्या पाएंगे? हाँ, वो बारीकी तो गया नहीं आदमी जब तक। तो हाँ, नमाज को कायम करने से मुराद उसकी खुशू को अदा करे, ऐसा पढ़िए। उसमें कई चीजें हैं, एक चीज नहीं है। हाँ, एक चीज नहीं है। चलो मैं पढ़ता हूँ। वो 1-2 मिनट की बात नहीं कि 2 मिनट में हम आपको समझा दें। नहीं, मैं बकरी बात पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो वो जैसे गाड़ी चलाना, आप पूछो गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, तो हम 2 मिनट में थोड़ी बात समझा देंगे गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, और बता भी देंगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे, ना चला पाओगे। नहीं चला पाएंगे, सही। हम आपको बताएंगे कि जो है किलत ये है, तो उसको आप बिरी समझोगे, और बिरी को किलत समझोगे। हाँ सही है, सही। तो इसलिए पढ़ो और फिर उस पर दिमाग लगाना, और फिर हमसे पूछना, फिर हम बताएंगे कि नमाज कायम कैसे होगी। उम्मत को फंसाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान करके दिया है, एक मरतबा में काम बन जाएगा, छोटी चीज है। इसलिए ईमान के सीखने में टाइम लगता है। ईमान की तरफ से लोग धोखे में कि ईमान हमारे अंदर तो है ही है। ईमान में तो नमाज से काम क्यों नहीं बन रहे हैं आपके? अगर आप कह रहे हो हमारे घर में लाइट है, तो बल्ब क्यों नहीं चल रहा, पंखा क्यों नहीं चल रहा आपका, फ्रिज क्यों नहीं चल रही, कूलर क्यों नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रही है? बताइए। उम्मत उलझ गई है अभी साहब। उम्मत क्या करेगी? तो मौलाना साहब ने काम शुरू किया था। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे नई कौम तैयार करनी है हमको, और फरमाते थे मुसलमानों को गलतफहमी है कि ईमान हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए उसके बाद की चीजों में लगे हुए हैं। आपको गलतफहमी की लाइट हमारे घर में आ रही है, पंखा सही करा रहे हो, जबकि लाइट गड़बड़ है, पंखा सही है, तो चलेगा पंखा आपका?
उम्मत भोली वाली है, उसमें पढ़ाई कम, गरीब भोली वाले से काम नहीं चलेगा, ये जिम्मेदारी सीखना पड़ेगा, अल्लाह ने इसी इम्तिहान के लिए भेजा है। लेकिन नहीं हाफिज साहब, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ये उलमा लोगों ने इनको गुमराह करके रखा हुआ है ना, सबको क्या करेंगे। उम्मत को कहाँ इतना इल्म है हाफिज साहब, वो तो सुनने का जज्बा तो सब में है, अल्लाह रसूल का डर सब में है, सही, लेकिन अमल क्या करे क्या नहीं करे ये समझ में नहीं आ रहा ना। सही, लोग क्या करे क्या नहीं करे, कि जो सही मंजिल तक नहीं पहुंचा। आप जो बता रहे ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग बात सुनने मिले तो आदमी करे क्या। अगर 10 आप बाजार में खरीदी करने के लिए 10 दुकानदार अलग अलग वो उनकी बातें बताने लगे तो आदमी का माइंड तो डिस्टर्ब होगा या फिर। मगर अल्लाह ने क्या कहा है कि ईमान सीखने में पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इत्तिबा कीजिए। हाँ, और अल्लाह ने क्या इल्म कैसे देंगे, अल्लाह ने कहा कि दुनिया से बेरगबती हासिल कर लो, बगैर सीखे इल्म देंगे। भाई जो अल्लाह की चीज है वही तो बताएगा कैसे देंगे। जो चीज आपके पास है आपसे लेना है तो आप ही तो बताओ कि हम किसको देंगे कैसे देंगे। तो अल्लाह इल्म जो है वो अल्लाह की जाती चीज है, तो अल्लाह जिसको देंगे उसी को मिलेगा। तो अल्लाह ने बताया हम कैसे देंगे किसको देंगे। समझ गए ना। और ईमान और इल्म किताबों में नहीं है, ये भी समझो पहले। ईमान और इल्म जो है किताबों में नहीं है, ईमान किताबों में नहीं है। किताबों में होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पे इतनी मेहनत न कराते, एक हदीस समझा देते, वो बता देते। हाँ, किताब में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कैसा ईमान सिखलाया, अगर वो निकाल पाओ तो निकाल लो, वैसे मेहनत कर लो, ईमान सीख जाओगे आप। जैसे दवा किताबों में नहीं है, दवा कहाँ मिलेगी, दवा कैसे बनेगी, ये किताब में लिखा हुआ, तो आप उसको पढ़ते हो नहीं समझ पाते हो तो हमसे पूछो, किसी से पूछो, बता देते हैं, जितनी मालूम होता है हमको। तो ऐसे ही किताब में ये लिखा हुआ कि ईमान आपको कैसे मिलेगा अल्लाह से, है लिखा हुआ। तो वो मेहनत का तरीका लिखा हुआ है। ऐसे इल्म जो है किताबों में नहीं है, ये इल्म के अल्फाज हैं। इल्म के अल्फाज, समझिए ना। इल्म अंदर आता है, जो चीज दिल के अंदर से बाहर आता है उसको इल्म कहते हैं। तो लोग धोखा में लगे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने एक सिफत बतलाई है कुरान में इल्म की, कि इसके बारे में है कि तकवा अख्तियार कर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तकवा अख्तियार कर लो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। तो आलिम की पहचान तो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बताई, जाहिल की पहचान हजरत उमर ने बताई है। ये तो सही है। हजरत उमर ने फरमाया जो अपने को आलिम कहे वो जाहिल है। बराबर, सही समझिए ना। तो जाहिल की पहचान हजरत उमर ने बताई है, आलिम की पहचान अल्लाह के रसूल ने बताई है। बराबर है, सही। तो चलो उसको पढ़ो, फिर बताएंगे आपको हम इंशाल्लाह। और उसको पढ़ो, पहले उस पर दिमाग लगाओ, बाकी सब चक्कर में ना पढ़ो। समझ गया ना। एक महीने से ठीक है।